سائلوز کو سر بریک نہیں کر سکیں گے. اینڈ آئی تھنک دا پلیس ٹو اسٹارٹ ود از آور ہوم. بالکل. اچھا، ہم اتنی دیر سے یہ بات کر رہے ہیں کہ بات کرنا، ملنا جلنا کتنا ضروری ہے، اور اس کے بہت سے ہم نے ایکسپریشنس اس کے جو ہیں مختلف اس کہنا چاہیے سوشل ایکٹیویٹی کے جو مختلف مظاہر ہیں ان کا ذکر کیا ہے. لیکن آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں یہ لوگ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں اور ہم چپ بیٹھے، تو آپ سے انٹریکٹ بھی کرنا ہے اور اس کو لیٹس ڈو اٹ ان اے ہاں. ایک ہاتھ مائک کا ہے، آپ تبصرہ کریں گی، سوال پوچھیں گی، جو کچھ بھی ہو ذرا مختصر ہو تو زیادہ لوگ شریک ہو سکیں گے. السلام علیکم. میرا سوال جو ہے وہ میم صدف سے ہے. جیسے کہ انہوں نے شروع میں ہیریٹیج بلڈنگ کا ایک حوالہ دیا، تو میں صدف میم سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ میں نے بھی صدر کی بلڈنگ، منوڑا، سرائے کوارٹر، ان سب گلیوں کا اور ان کا سروے کیا، اور میں بھی ہیریٹیج بلڈنگ کے ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتی ہوں. جب میں نے لوگوں کا انٹرویوز لیا اور ان لوگوں سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ کیا یہ بلڈنگز رہنی چاہیے یا نہیں رہنی چاہیے، یہ جو ہمارے پاکستان کا سرمایہ ہے، خوبصورتی ہے، تو اس حوالے سے آپ لوگ کیا سوچتے ہیں؟ تو 90% لوگوں نے یہ کہا کہ وہ نہیں رہنا چاہتے، وہ نئی کنسٹرکشن میں رہنا چاہتے، وہ یہ پرانی بلڈنگوں کو نہیں دیکھنا چاہتے. تو یہ سن کے ہم لوگوں کو کافی دکھ ہوا. ہم لوگوں کا مقصد پرانی بلڈنگ کی جتنی بھی ایلیویشنس ہیں، فساد ہے، آگے کا قائم رکھنا چاہتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ آگے کی نئی جنریشن اسے دیکھ سکے، سمجھ سکے. باقی کے اندر کی جتنی بھی کنسٹرکشن ہے اس کے لیے ہم لوگ پرمیشن دیتے ہیں کہ اگر وہ ٹوٹ رہی ہے، کچھ ہو رہی ہے تو اسے آپ چینج کر لیں، لیکن وہاں کے لوگ فساد بھی نہیں رکھنا چاہتے. تو اس حوالے سے میم صدف کیا کہنا چاہیں گے کہ کیسے ان لوگوں کے اندر ہم یہ پیدا کریں کہ نہیں یہ ہونا چاہیے؟ اچھا، بہت شکریہ کہ آپ نے ایسی ایک آدھ جگہ کا نام لیا جس سے بہت سارے لوگ انفیملیئر ہوں گے. ابھی میں اندر بیٹھ کے یہ رونا رو رہی تھی باقاعدہ کہ لوگوں کی معلومات ہیریٹیج کے معاملے میں صدر تک ختم ہو جاتی ہیں. آپ نے ذکر کیا سرائے کوارٹر کا، تو مجھے اندازہ ہے سے بہت سارے بچے آرکیٹیکچر کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ 6 مہینے کے ایسے کورسز کر رہے ہوتے ہیں ساتھ میں اپنی یونیورسٹی کے گروپس میں، جہاں مختلف پرانے علاقوں میں جا کے آپ لوگ سروس کرتے ہیں. تو ایک تو جو آپ نے سوال کیا ہے وہ بہت مستند ہے، لیکن اس سے پہلے یہ بتائیے، آج سے 15-20 سال پہلے کی میں بات بتاتی ہوں آپ کو. میڈیا اتنا آزاد نہیں تھا، اب میڈیا بہت آزاد ہے. اس وقت ہمیں بس جو جتنا پی ٹی وی نیوز پہ ہم نے دیکھ لیا ہمیں وہ پتا تھا. آج میڈیا اتنا آزاد ہے، اتنے نیوز چینلز ہیں کہ آپ سے اگر آپ نے سیر حاصل گفتگو کرنی ہے کسی سے پولیٹکس پہ، تو آپ کے چائے والے سے لے کے سبزی والے سے لے کے دھوبی تک کو یہ ساری باتیں پتہ ہوتی ہیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے، کس پولیٹیشین نے کس کے اوپر کیچڑ اچھالی، کہاں آج کل کیا مسائل چل رہے ہیں، کہاں کی گورنمنٹ زیادہ کام کر رہی ہے، کہاں کی کم کام کر رہی ہے. کیسے میڈیا سے پڑھتے وڑھتے تو کیونکہ ہم لوگ ہے نہیں، ہماری جنریشن، تو میڈیا سے ٹی وی دیکھتے ہیں ہم، اور اس کے بعد آپس میں بڑی اچھی گفتگو بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو میں یہ کوئی بہت لٹریٹ کلاس، بہت پڑھی لکھی کلاس کی بات نہیں کر رہی ہوں، ہماری جو ہم عام عوام جو ہے میں ان کی بات کر رہی ہوں. یعنی کہ ہم نے لوگوں کو کنڈیشن کیا. جب آپ لوگوں کو کنڈیشن کریں گے، اویئرنیس کریٹ کریں گے، ان کو یہ چیزیں بتائیں گے، تو آہستہ آہستہ تو پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے نا. یہ جو اس وقت یہاں پہ 4 لوگ بیٹھے ہیں، اگلے ڈائلاگس میں کوئی اور 4-5 لوگ بیٹھے ہوں گے، یہ اویئرنیس ہی کریٹ کر رہے ہیں نا. ورنہ شاید کلچرل سینٹر کا سوچتے بھی نہیں ہوں گے لوگ. ایک ڈائلاگ دوسرا ڈائلاگ، یعنی کہ ڈائلاگ کریٹ کریں. تو اسی طرح ہیریٹیج اور اس کی پریزرویشن، اس کی افادیت، اس کی ضرورت اور اس کا ہماری ہسٹری اور آئیڈینٹی سے لنک ہم لوگوں تک پہنچائیں گے تو لوگ سنیں گے. بار بار سنانا ہوگا، بار بار ان تک یہ بات، یہ پیغام پہنچانا ہوگا. اس کے علاوہ ایک مسئلہ تضاد ہے. آپ فرض کریں کہ میں رہتی ہوں ایک بہت پرانی سی ہیریٹیج بلڈنگ میں، جس میں کوئی تیسرا آدمی جو ایئر کنڈیشن گاڑی سے اترتا ہے، جو باہر سے آیا وہ، تو اس کو تو بڑا اچھا لگے گا، کیا بیوٹیفل گرل واک ہے، واہ. جب اس گھر میں آپ رہیں گے تو اس کے مسائل اس گھر میں رہنے والے کو پتہ ہوتے ہیں. اس کی چھتیں ٹپک رہی ہوتی ہیں، وہاں رہنا خطرناک ہوتا ہے. میں جو اتنی بات کر رہی ہوں ہیریٹیج کی، میں نے آن فٹ یہ جگہیں وزٹ کی ہیں.
कराची के पुराने इलाकों में इन बिल्डिंग्स के अंदर जाके देखा है, वहाँ सीढ़ियाँ चढ़ना खतरनाक है। तो ज़ाहिर बात है आप डे टू डे बेसिस पे ऐसे चैलेंजेस फेस करेंगे तो आप तो यही कहेंगे कि मुझे नई बिल्डिंग में रहना है। शहर में तजाद देखें, एक तरफ इतना पुराना और जो पुराना इलाका है उसकी हालत देखें, और दूसरी तरफ आपको चमकती दमकती नई बिल्डिंग्स दिखेंगी, तो आप क्यों उस पुरानी बिल्डिंग में रहना चाहेंगे? दूसरी बात ये है कि ख़तरा अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए कोई नहीं चाहता है। अगर आपको ऐसा लगेगा कि इस बिल्डिंग में रहना हमारे लिए ख़तरा है, इस बिल्डिंग में रहने से हमारी शान में कमी आती है, हमारा स्टेटस जो है वो कम दिखता है क्योंकि बाहर से बोसीदा है, क्या हम बाहर से बोसीदा दिखने वाली बिल्डिंग में रहना चाहेंगे? तो यहाँ मसला ये है कि जो मैं कह रही हूँ कि लोगों को कंडीशन करने की ज़रूरत है, अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है, वो सिर्फ हम लोगों को नहीं, यानी कि आवाम को नहीं, वो अवेयरनेस गवर्नमेंट लेवल पे भी क्रिएट करने की ज़रूरत है, ताकि वो हम जाके अपने घरों की या इन पुरानी, मैं और आप जाके इनकी मरम्मत नहीं कर सकते, इनको प्रिजर्व नहीं कर सकते जब तक कि हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं होगी। हमें ये क्रिएट करनी है अवेयरनेस कॉर्पोरेट सेक्टर में, सो दैट दे फंड दीज हेरिटेज बिल्डिंग्स। कुछ से शुरू करें, वहाँ पे जब नोटिसेबल चेंज आएगा तो फिर लोग आगे भी इन्वेस्ट करेंगे। तो ये उस घर में रहने वाला नहीं कर सकता, ये एक कलेक्टिव एफर्ट है। वो जो आप साइलोस के अरशद साहब बात कर रहे थे, हर शख्स ना अपनी अलग अलग सेपरेट पॉकेट्स में काम करता है। तो ये कलेक्टिवली अगर हेरिटेज को प्रिजर्व नहीं करेंगे तो ये वाकई वक्त के साथ बिल्कुल बहुत जल्दी बल्कि डिमिनिश हो जाएंगी। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम फरहा है और मेरा FM रेडियो से ताल्लुक़ है। मैं अरशद साहब की गुफ्तगू के हवाले से बात करना चाहूँगी जो अभी तक मैंने सुनी। होता क्या है कि जब हम अब जहन बना लेते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि कटी पहाड़ी पे हम नहीं जा सकते, तो मैं भी ये समझती थी कि हम नहीं जा सकते, लेकिन मुझे शौक़ था क्योंकि मैंने अखबारात में उसके बारे में बहुत पढ़ा था। तो तकरीबन 15 दिन पहले मैंने विज़िट किया और अल्हम्दुलिल्लाह आप अपनी गाड़ी के साथ वहाँ जा सकते हैं। अब नौमान की सूरत हाल इतनी बेहतर है कि आप आराम से विज़िट कर सकते हैं। होता क्या है कि हम लोगों ने जहन बना लिए हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये होती है, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं ना, ज़्यादातर वो ऐसी जगहों पर मुनक्किद की जाती हैं जहाँ स्टूडेंट्स का या आवाम का एक्सेस ही नहीं होता। जैसे ऐसे होटल्स मुंतखब कर लिए जाते हैं जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं जाती, तो जब तक किसी के पास अपनी ज़ाती कन्वेंस नहीं होगी वो वहाँ नहीं पहुँच पाएगा, तो मकसद ही फौत हो जाता है। ठीक है। अच्छा, फिर तीसरी और अहम चीज़ ये होती है कि जब सेशंस आते हैं ना कि सवालात पूछने, तो मैंने ऐसी बहुत सारी तकरीबात अटेंड की हैं जहाँ पे स्पीकर्स अपनी तो बात कर लेते हैं लेकिन आवाम से इंटरेक्शन नहीं हो पाता। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है। गरीब जो है उसका पॉइंट ऑफ व्यू या मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पहुँच पाता। और माजरत के साथ कि लैंग्वेज को, इंग्लिश को बहुत ज़्यादा क्योंकि प्रमोट किया जाता है, हर बंदा अपनी मादरी ज़बान में बात करने में कंफर्टेबल होता है। बहुत सारे ऐसे अल्फाज होते हैं जो हमारी गुफ्तगू में शामिल हो चुके हैं, तो उसमें बात करना बहुत आसान होता है। लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास का बंदा होता है वो अपना सवाल सोचता ही रह जाता है, उसका सवाल नहीं पहुंच पाता। तो जहाँ डायलॉग्स की बात हो, जहाँ सोसाइटी की बेटरमेंट की बात हो, वहाँ पे इस खलीज को कम करने की ज़रूरत है। देखिए, तालियां बजी हैं तो बात तो सही हुई ना। नहीं, मैं दो बातें कहना चाहता हूँ आपकी गुफ्तगू से निकलती है। पहली बात तो कटी पहाड़ी, इसमें क्या नुक्ता है? नुक्ता ये है कि हमें जाना चाहिए मुख्तलिफ जगहों पे। अर्शद साहब जो कह रहे थे वो भी उसका है जवाज़ के डर लगता है, और कुछ एरियाज़ हैं कि जहाँ ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है, और अक्सर एक परसेप्शन का भी मसला होता है। और जो लोग फराह, मैंने ये नहीं कहा था कि कटी पहाड़ी नहीं जाना चाहिए। मैंने सर से एक सवाल पूछा था कि अगर आपका कोई गेस्ट बाहर से आया है तो आप क्या उसको कटी पहाड़ी के इलाके में ले जाना पसंद करेंगे, बिकॉज ऑफ द परसेप्शन, नॉट द प्लेस इटसेल्फ। हाँ, बिल्कुल सही। तो वो ये है कि आप परदेशियों को या और ऐसे मेहमानों को जिनको आप हिफाजत से रखना चाहते हैं, तो ये जो मसला है कि हम अपने ही शहर को पूरी तरह नहीं जानते, इस पे बात हो रही थी, हम लोग बैठे थे अभी इस सेशन से पहले, नहीं जानते, और ये बड़ी तकलीफ दह बात है। यानी इसमें एक रवैये की बात है कि हाँ ये क्या है। मैं कितने लोग हैं जो ली मार्केट को जानते हैं, ना सिर्फ शहर बल्कि शहर के अतराफ, कराची जहाँ है, मकली,
एक यहाँ है रनीकोट 3 घंटे की ड्राइव पे, 3.5 घंटे की ड्राइव पे। तो मैंने बहुत से, जब मैं गुफ्तगू करता हूँ किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में, तो मैं पहले पूछता हूँ भाई कितने लोग हैं जिन्होंने आईफिल टावर देखा है? बहुत लोगों ने देखा है, लेकिन मकली और रनीकोट इतने लोगों ने नहीं देखा कि जो यहीं पर है 2 घंटे। और कमाल की चीज़ें हैं। इसी तरह इस शहर में बहुत से मोहल्ले ऐसे हैं, पुराने हैं, खारादर, मीठादर, उनकी गलियां, उनमें एक है, मतलब सड़कों पर पैदल चलना, ये तो हर शहर के लिए एक होता है ना, वॉकिंग द स्ट्रीट्स, वही सबसे बड़ा एक शहर को जानने का और किसी इलाके से दोस्ती करने का जरिया यही है कि आप घूमें फिरें चलें। तो एक तो वो है। दूसरी बात, एक और आपने बात की थी जो अंग्रेजी ज़बान और इंटरेक्शन और अच्छा, हमने जो ये प्रोग्राम बनाया डायलॉग्स का, तो हमारे यहाँ जो एक तंजीम है आम कराची, उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसमें से हर कोई किसी न किसी चीज़ का, जिसे कहते हैं वो तो चैम्पियन के हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी या वो होती है, तो मैं जो हूँ वो डायलॉग्स और टॉक्स से मेरा ताल्लुक़ है। तो हमने ये प्रोग्राम बनाया हुआ है कि तालिब इल्मों के बाद या उनके साथ साथ हम कम्युनिटीज़ में जाएंगे, मोहल्लों में जाएंगे, कोशिश करेंगे कोई ऐसा कम्युनिटी सेंटर हो। और मोहसिन जिन्होंने के जो कि हमारे तारुफ कराया, वो गवाही देंगे कि इस सिलसिले में बहुत काम हो चुका है। एक प्रोग्राम ये है कि जितने भी यूनियन काउंसिल हैं उसमें हर एक में जाएं, जो लोकल गवर्नमेंट के लोग हैं उनसे तय करें, मोहल्लों में जाके वहाँ बात करें, वहाँ उनको जमा करें, वहाँ उनमें ये एहसास बेदार करें कि भी अपनी कम्युनिटी से आप जुड़े हुए हैं तो क्या कर रहे हैं, एंड हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर यू टू वर्क टुगेदर, एंड एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो जिसमें कि हम अपने मसाइल के बारे में भी सोच सकें और मिलजुल कर एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। जी, अगला हाथ कहाँ से उठा था? जी हामिद, ये हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। सर, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि आप लोग कहते हैं कट्टी पहाड़ी में इलाके हो सकते हैं, रह नहीं सकते। मेरा इलाका कट्टी पहाड़ी इलाके से है, मैं बलोच हूँ, मैं नहीं जा सकते कि सर ये ऐसे इलाके हैं, मतलब जैसे गोट के इलाके होते हैं, मैं वहाँ पे रह सकता हूँ कि मतलब लोग वहाँ पे, मतलब जैसे दानिश है, वो बहुत से लोग सर आते हैं एक्टिंग करने के लिए, कोई नहीं डर सकता। लोग कहते हैं कि मतलब कट्टी पहाड़ी इलाकों में नहीं जा रही, वहाँ पे मतलब बदमाश होते हैं, चोरी बहुत होती है, ये होती है। सर हमारे इलाके मतलब रात के टाइम पे सन्नाटे होते हैं, लोग सिर्फ आते डरते रहते हैं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ लोग डरते रहते हैं। हमने बताया कि क्यों डरते हैं आप लोग, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बस हम ये अंधेरे देख सकते हैं। हमारे इलाके में सर ना मतलब कोचिंग सेंटर्स, ना स्टडी के कोई इंटरेस्ट नहीं होते। मैं ये आप लोगों से कोशिश करता हूँ, सवाल करता हूँ कि मतलब हमारे इलाके में जो स्टडी के होते हैं तो आप बेहतर कर दें। सर मैं इसका जवाब दे दूँ, बिल्कुल, मैंने मेंशन किया। नहीं बिल्कुल, ये वैसे मैं ये एक बात कह दूँ अच्छा साहब, ये जो कटी पहाड़ी है ना, ये एक मिसाल के तौर पर आई थी, यानी जेनरिक सेंस होता है ना, लेकिन कटी पहाड़ी की अहमियत आपकी वजह से अब बढ़ गई। देखिए बेटा, कैन आई हैव योर अटेंशन? ये परसेप्शन की बात है, और जो बात हो रही थी, जो कि सारे पार्टिसिपेंट्स बात कर रहे थे कि द प्लेस इटसेल्फ इज़ नॉट बैड। वो जगह जो है वहाँ पे जो कटी पहाड़ी जब कटी नहीं थी और पूरी जुड़ी पहाड़ी थी, तो मैं वहाँ शिकार खेलने गया हूँ, तीतर का शिकार। यू वुडंट बी इमेजिनिंग कि वहाँ तीतर भी होते थे किसी ज़माने में, ठीक है। ये एक परसेप्शन हो गया है। और दूसरे वो जो मैंने आपसे बात की कि हमने सेग्रीगेशन कर दी है, हर जगह जो है ना साइलोस बना दिए हैं, पार्टीशंस खड़े कर दिए हैं। हमें ये पार्टीशन तोड़ने पड़ेंगे, और चाहे वो कटी पहाड़ी हो या कोई दूसरा इलाका हो, हर जगह की एक इनफरादी सोच, जैसे आपकी सोच है और आपने इसको फील किया, एंड आई रियली फील हैप्पी कि आपने फील किया, तो
کسی جگہ کو ڈیمین کرنا یا اس کو ڈیروگیٹری سینس میں نہیں تھا. مقصد ایک بتانا تھا کہ آپ ابھی بھی بتا دیں کہ سب کو پتہ ہے کہ لیاری کا جو علاقہ ہے اٹ از فل آف انٹلیکچوئلس. آپ کو وہاں پہ یہ فنکار بھی ملیں گے, آپ کو رائٹرز بھی ملیں گے, آپ کو شاعر بھی وہاں ملیں گے. اور جو ہماری کراچی کی سب سے پرانی کمیونٹی ہے, شیدی کمیونٹی, وہ پورا ان کا کلچر لیاری میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اس حقیقت کو بھی دیکھیں گے کہ لیاری از انفیسٹڈ ود کرائم. مجھے نہیں پتا, آئی ہیو نیور بین ٹو انر لیاری, لیکن جو اخبار میں آتا ہے اور جو ٹیلی ویژن پہ میں دیکھ رہا ہوں. بٹ یس, ہم جب ان دیواروں کو گرائیں گے تو یہ سارے ایریا ہمارے لیے ایکسیسیبل ہوں گے. اور